Okay, dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Today we will know poem number 8, and poem number 8 is The Tale of Castor the Dragon. It is a ballad. A ballad is a song or poem that narrates a story. Its theme may be love. That means in a ballad, that may be a song or a story, and its theme, whatever it has been represented in a ballad, that may be its theme may be love, hatred, loyalty, piety, or war. John Keats' poem L'Abbe Dames Sans Mercy is a good example of this ballad. In the poem, there are different characters which are a black kitten, little grey mouse, a dog, and a dragon. They live in the house of Blender. And let us see, these are some words which need to be explained. It's a very simple poem, though it's a story of all these, what has happened, who has played man role in the poem. Wagon, a four-wheeler vehicle, wagon. Relio, trilio. With these two words, character of dragon has been represented in the poem. These are rhyming words, having same sound. Badger, a sharp pointed knife, which is sharp on both sides. वो छुरा जो दोनों तरफ से तेज होता है, तेज धारी वाला छुरा दोनों तरफ से होता है, पॉइंट इसका होता है तेज. Tickle, to cause uneasiness, गुदगुदाना, जैसे ऐसी मतलब इसी तरह किसी को खुशी की आना कि वो हिस पड़े. तो सिवा, supremely innocent, मासूम. Window or veranda. Yelp, short or high sound. Yelp, particularly made from nose. जब नाक से कोई ऐसे आवाज निकाली जाती है, that is also called this. Short or high sound. Trickle, to move or go. To move or go slowly. Trickle. Snorting, loud sound through nose. जैसे घोड़ा कभी नाक से आवाज निकालता है. Jangling, noise of metal hitting. जब किसी दांत को हम मारते हैं ऐसे, उससे जो आवाज आती है, that sound is called jangling. Scarum, move because of nervousness. जैसे कूने में घूम रहे हैं. When we try to catch a mouse, तो अगर हम किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कूने से बेचारगी की हालत में दौड़ते रहे. Gulp, to eat or drink quickly. जल्द कोई चीज खा लेना. Gobble, to eat food too fast. बहुत जल्दी खाना. यहाँ इसमें खाने के साथ this with eatables and this eat or drink with both. Fluster, upset, confused when we do not understand. And let us see the poem. Poem is very easy. You can read it. You have textbooks, you can read it this from textbooks, but here is only an explanation of the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog, and a little red dragon, and a trilio little pet dragon. Now, the name of the little black kitten was Ink. That means name of kitten in the story is Ink. Remember? And the little grey mouse she called Blink. That means name of
mouse in the story has been kept as Billy, and the little yellow dog was sharp as mustard. Name of dog was kept as Mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. Name of dragon was kept in this story or in this poem as Custard. So the name of the poem is also The Tale of Custard the Dragon. Now this belongs actually this about this dragon, what dragon did later on. ड्रैगन जो था ये इसको बहुत बुज़दिल कहते थे सभी, लेकिन जब काम करने का मौका आया, खतरे के मौका पर इसी ने सब कुछ काम किया, बाकी सब छिप गए. Custard the dragon had big sharp teeth. जैसे ड्रैगन है ये उसके कितने ये दांत होते हैं, बहुत तेज दांत, big and sharp थे, and spikes on top of him. Spikes जो उसके वो बाल होते हैं, spike बहुत वो मूछे या उसके जो बाल होते हैं, on top of and scales underneath, वो जो ऊपर की तरफ होते हैं उन्हें spikes कहते हैं, जो नीचे हैं उन्हें scales कहते हैं, एक जैसे होते हैं. Mouth like a fireplace, जैसे हमारा चूल्हा होता है उसका माउथ इसी माउथ जो था हमारे चूल्हे की तरह, mouth as a like a fireplace, chimney fire nose, चूल्हे से जो धुआं निकलता है वो चिमनी से निकलता है बाहर, तो इसका जो इसकी नाक को एक चिमनी कहा गया है स्टोरी में. माउथ लाइक ए फायरप्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, एंड रिलियो डेजर्स ऑन हिज टोज, उसके अंगूठों पर तेज जैसे एक छुरा होता है, छुरे की मांग वो नाखून उसके लिए थे, वो छुरों के बराबर थे. Belinda was as brave as barrelful of bears and ink, and Billy chased lions down the stairs. इनका काम किया जाता है, काम दिखाया जाता है. ये एक और बिली चूहा और बिल्ली जो थे, चूहा बिल्ली और कुत्ता, ये क्या कर रहे थे, इनका नीचे ये काम दिया गया है. ये जैसे शेर को चैलेंज देते थे मतलब लड़ने के लिए. Mustard was as brave as tiger in a rage. जब एक शेर गुस्से में होता है तो इसकी मिसाल, मस्टर्ड की मिसाल, इनका जो डॉग था, कुत्ता जो था, उसकी मिसाल एक टाइगर की थी जब वो गुस्से में होता है. बट कस्टर्ड ट्राइड फॉर नाइस सेफ केज. जो कस्टर्ड जो था, जो ड्रैगन था, ड्रैगन बेचारा छुपने के लिए कहें सेफ केज के लिए चिल्लाता था. बिलिंडा टिक्लेड हिम, ये उसको गुदगुदाती थी. बिलिंडा शी टिक्लेड हिम अनमर्सीफुल, बहुत सख्ती से इसको गुदगुदाती थी. एक Billy and Mustard, they rudely called him Percival. वो उसको Percival कहती थी, supreme innocent, मासूम बेचारा, यानी जिसको हर एक सता सकता है. They all sat laughing in the little red wagon at Trilio coward dragon. ड्रैगन को बेचारा ड्राइवर में बैठा हुआ था, ये सब वैगन में चलते थे. They were going somewhere in the wagon and were laughing at him. उसके ऊपर हंसते थे. Belinda giggled till she shook the house. वो हंसती रहती थी जब तक वो घर से दूर जाती थी इस वैगन में. And Billy said, "Weak." This is sound made by noise, mouse, which is giggling for a mouse. जो weak has been represented as giggling of a mouse. जैसे हंसना, चिल्लाना, चीखना जो चूहे की आवाज है. Ink and Mustard rudely asked his age. वो उसकी उम्र बताती थी, आपकी उम्र क्या है, ड्रैगन की उम्र पूछती थी. When Custard cries for his nice age, ये फिर भी बेचारा कहीं छिपने के लिए बैठा था, इसको सताते थे. जैसे एक्चुअली when they were in family atmosphere, ये उनको लगना ये मानो जैसे एक फैमिली होती है, they were like a family. इसी वजह से ये Mustard सब कुछ बर्दाश्त करता था. Suddenly they heard a nasty sound. उन्होंने आवाज सुनी, खतरनाक आवाज उन्होंने सुनी. And Mustard growled and they all looked around. कुत्ते ने झांका आगे दाएं बाएं. Meow. अब बिल्ली ने क्या कहा, उसने अपनी आवाज निकाली, अपनी meow, crying and ooh,
cried Belinda. Belinda ने ऊ कहा, क्या किया? For there was a pirate. समुद्री कज़्ज़ाब, डाकू जो समुद्री डाकू जो होता है उसको पायरेट कहते हैं। वो दूसरों की चीजें चुराने पर अपना गुजारा करता है। Climbing in the window, and that pirate was coming from the window. वो चढ़ रहा था ऊपर। What he was having? Pistol in his left hand, pistol in his right or left, दोनों हाथ में पिस्टल थे। And he held in his teeth a cutlass bright. आंखों में एक छुरी थी, cutlass एक छुरी थी, तेज धार वाली छुरी थी। His beard was black, one leg was wood. एक टांग उसकी पहली काटी हुई थी, उसमें ये नकली की वो नकली टांग एक लगी हुई थी। It was clear that the pirate mean no good. ये किसी अच्छी नीयत से नहीं आया था। अब इतनी चीजें लेकर पिस्टल और छुरा। Belinda pale बहुत सारी जगहों पे हुआ है। पिछली पोएम में आपने पढ़ा पेल जो जर्द होना। My mother at 66 इसमें ये है पेल वो जर्द पड़ गई। उसने जब देखा हालत कि अब ये डाकू खत्म करेगा। Belinda pale and she cried for help, but Mustard howled with a terrified yelp. एक ही जल्दी वो आवाज में वो एक आवाज निकाली वो चला गया। एक आवाज जैसे बहादुरी पहले कहता था, अब उसके उस वक्त नहीं निकाली। It trickled down to the bottom of the household. एक जो थी बिल्ली जो थी वो नीचे चली गई। And little mouse बिल्ली strategically mouse hold वो बिल में चला गया। माउस जो था वो बिल में चला गया। But up jumped Custard. अब कस्टर्ड की बारी आई, ये खड़ा हो गया। Snorting like an engine, जैसे ऐसे चलाए जैसे इंजन एक चालू हो गया। उसने आवाज निकाली ऐसी। Clash in his tail, दुम को हिलाने की, दुम को चलाकर उसने आवाज निकाली। Like irons in a dungeon, with a clatter and a clunk and jangling square, he went up at a pirate like a robin at a worm. एक जब लगाकर एक बार बार डसने की, बार बार उसे डसा तो क्या हुआ? उसने ऐसा हमला किया इस पायरेट पर, इस डाकू पर, लाइक ए रोबिन एट ए वोम, जैसे चिड़िया एक कीड़े पर झपट पड़ दी, ऐसे वो इस डाकू पे झपट पड़ा। The pirate gaped at Belinda's dragon. उसने गैप निशाना बना लिया, पिस्टल उसके हाथ में थे, निशाना बना लिया ड्रैगन पर। And gulped some grog from his pocket flagon. और पॉकेट से निकाली कोई चीज उसने खाई, कोई चीज उसने पी, वो शराब या कोई और चीज उसके पास होगी उसने पी। He fired 2 bullets, but they didn't hit. उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन वो उसको ड्रैगन को नहीं लगी। एंड Custard gobbled him every bit. Gobble डसना, बार बार डसना, बहुत उसने डसा उसको। Belinda embraced him. अब वो जो मार गया, Belinda आई और उसने उसको गले लगाया, इसको ड्रैगन को गले लगाया क्योंकि उसी ने सब की जान बचाई। Mustard licked him. अब कुत्ता आया उसको चाटने लगा, लिक चाटना। No one mourned for the pirate victim. अब किसी ने मातम नहीं बनाया जो मर गया, पायरेट मर गया, पायरेट को उन्होंने खत्म किया तो किसी ने उसका मातम नहीं बनाया। Ink and Blick and Gilly did gyrate, वो भी नाचने लगे खुशी में, वो हंसने लगे। Around the dragon that ate the pirate, वो उसके गिरद गिरद घूमने लगे। बिल्ली और चूहा भी उसके गिरद घूमने लगे, ड्रैगन के गिरद घूमने लगे क्योंकि उसी ने पायरेट को खत्म किया। But presently up spoke that little dog Mustard. अब ये अपने अपने कारनामे करने लगे, बयान करने लगे। I had been twice as brave if I hadn't been flustered. अगर मैं अपसेट नहीं होता, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ? जिससे Mustard, अब ये डॉग कुत्ता कहता है इनका, मैं कंफ्यूज हो गया वरना मैं इससे दुगना बहादुर होता, मैं पहले ही वार में उसको खत्म कर लेता। I had been twice as brave if I hadn't been flustered.
एंड अप सपोक एक एंड अप सपोक बिलीव, आप चूहा और बिल्ली भी कहने लगे। वी हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, हम 3 गुना इससे ज्यादा बहादुर होते। एंड कस्टोर सेड आई एग्री, कस्टोर ने सब काम किया, वो कहता है आई एग्री, ठीक है मैं इसको मानता हूँ, आप बहुत बहादुर हैं। आई एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मैं मानता हूँ हर एक मुझसे बहादुर है, लेकिन वो भी काम करने के बाद पता चला तो बहादुर कौन है। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर एक मुझसे ज्यादा बहादुर है। यू विल बी प्रोवाइड द एक्सरसाइज अकॉर्डिंग थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।